Hello students, welcome to Vedyuk. I am your SST mentor. In this video, we are going to learn about the following topics which are the development of resources, resource planning in India, conservation of resources, land resources and land utilization. So let's start with the first topic which is the development of resources. As we all know that resources are being gifted to human beings free of cost by nature and they are using them carelessly. Looking at this overutilization of resources by the great human beings, there is an urgent need for the development and conservation of resources as depletion of resources can lead to severe environmental problems like global warming, environmental degradation, soil pollution, ozone layer depletion and so on. तो ये सारे environmental problems human beings जो ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेस का उसकी वजह से हो रहे हैं. Human beings are satisfying their needs, but due to this resources are getting depleted. So what human beings are doing, they are accumulating resources. Now what do you mean by accumulating resources? They are storing the resources and due to this storage society जो है वो रिच एंड पुअर ऐसे दो सेक्शंस में डिवाइड हो रही है. रिच पीपल हैव ऑल द रिसोर्सेज एंड दे कैन यूज देम एट एनी टाइम, बट पुअर पीपल के पास रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं हैं एंड दिस अबंडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस. फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस and that gas coming from air conditioner and freezers. और ये कौन यूज करता है? फ्रीजर्स या एयर कंडीशनर्स ये किसके पास रहता है? रिच लोगों के पास. So it is essential to use the resources responsibly so they can support the present and future also. The equal distribution of resources is essential for global peace. Otherwise, whole planet will be in danger. And this can be achieved through sustainable development and resource planning. So students, पहले देखते हैं कि sustainable development क्या है. The term sustainable development means doing the development in such a way that it should not damage the environment and also the future generation will be able to use them. Sustainable development का मीनिंग क्या है कि इस तरह से डेवलपमेंट हम करेंगे रिसोर्सेज को यूज करके कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें और जो भी रिसोर्सेस है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव हो ताकि वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन उसे यूज कर सके. इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ कोल, एज वी नो दैट कोल इज गेटिंग यूज्ड इन अ लार्ज एक्सचेंज फॉर एनर्जी फॉर्मेशन. तो कोल का यूज किस लिए किया जाता है? एनर्जी फॉर्मेशन के लिए. ऑल्सो इन रूरल एरियाज फॉर कुकिंग, और रूरल एरियाज में कुकिंग के लिए भी कोल को यूज किया जाता है. इफ यू यूज द कोल इन द सेम वे देन द फ्यूचर जनरेशन विल नॉट बी एबल टू यूज कोल. इन फैक्ट दे वोंट नो अबाउट द कोल. तो अगर हम ऐसे ही कोल का यूज करते रहे तो फ्यूचर जनरेशन को कोल मिलेगा ही नहीं. नाउ फॉर द डिस्कशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हंड्रेड्स ऑफ हेड्स of state meet at Rio de Janeiro in Brazil on June 1992 and they met for the first International Earth Summit. And the International Earth Summit addressed the problem of environmental protection and socio-economic development at the global level. In this summit, all the members who were present there signed the Declaration of Global Climate Change and Biological Diversity. And they adopted Global Forest Principle and Agenda 21 for the endorsement of sustainable development. तो उन्होंने क्या किया, जितने भी हेड्स थे स्टेट के उन्होंने एक डिक्लेरेशन जो था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का वो साइन किया एंड उन्होंने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एजेंडा 21 जो है ये एक्सेप्ट किया फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एजेंडा 21 क्या है. So Agenda 21 at the United Nations Conference of Environment and Development UNCED, which was held in Rio de Janeiro in Brazil, Agenda 21 was signed by the leaders who were present in International Earth Summit in 1992.
तो एजेंडा 21 जो है वो किसके द्वारा साइन किया गया था? जितने भी लीडर्स रियो डी जेनेरो ब्राजील में जो यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसीईडी जो ब्राजील में हुआ, उस मीटिंग में जितने भी लीडर्स प्रेजेंट थे उन्होंने इंटरनेशनल अर्थ समिट में ये एजेंडा 21 को एक्सेप्ट किया. सो द एनवायरमेंट डैमेज ओवर दिस इज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन एंड एटसेट्रा वाज द एम ऑफ एजेंडा 21. So Agenda 21 can help in achieving global sustainable development. It also aims that every local government should draw its own Agenda 21. इसका और एक एम क्या था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट ने खुद का एजेंडा 21 भी एस्टैब्लिश करना चाहिए. So students, now it's time to jump on our next topic. And the next topic is resource planning. So resource planning is widely acknowledged strategy for judicious use of resources in country like India, which has enormous diversity of resources. अब हम सबको पता है कि इंडिया में रिसोर्सेस की बहुत सी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी. अब इतने सारे डाइवर्स रिसोर्सेस को यूज करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग भी चाहिए. तो अब हम देखते हैं कि इंडिया की रिसोर्स प्लानिंग किस तरह से है. इन इंडिया सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेस. तो इंडिया में कैसे है कि कुछ रीजन्स में सम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं और कुछ रीजन्स में वो रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, वो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होंगे. जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, वहाँ मिनरल ज़्यादा मिलते हैं एंड कोल डिपॉजिट भी ज़्यादा ही मिलेंगे. लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आपको वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पे आपको कोल डिपॉजिट्स या मिनरल ज़्यादा मिलेंगे क्या? नहीं. इसी तरह से ऑल ओवर द इंडिया रिसोर्सेज की मात्रा जो है हर जगह अलग अलग है. लाइकवाइज राजस्थान हैज सोलर एंड विंड एनर्जी but lacks in water resources. With the next topic, we will see the resource planning in India. So in India, resource planning is very complex process and it includes the points such as identification of resources and having the proper list of that identified resources from the various part of India. And it involves a proper survey of the resource mapping quality and quantity wise data of the identified resources. For resource development plan, planning should be presented with appropriate technology, skills and well developed institutional setup. तो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के लिए जो प्लानिंग रहनी चाहिए वो कैसी रहनी चाहिए? वो प्लानिंग प्रॉपर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और स्किल्स के साथ प्रेजेंट करना है एंड वेल डेवलप इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी होने चाहिए. Now the third point includes matching of resource development plans with overall national development plans. तो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान और नेशनल डेवलपमेंट प्लान को मैच करना पड़ता है, टैली करना पड़ता है. सो ये था इंडिया का रिसोर्स प्लानिंग. देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो कंजर्वेशन मीन्स व्हाट? कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन. बट व्हाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर रिसोर्सेज? The reason is that resources are very important for every developmental activities of living world. And if you remember, we have seen in our first part of video that resources help human beings in day-to-day activity. Also, resources help in economic development. So for any development, we need to protect the resources. But we also know that we are using the resources carelessly. And due to this rational and overutilization, resources are getting depleted. And this lead to the various social, economic and environmental problems. और ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन एटसेट्रा, इन सारे प्रॉब्लम्स से ओवरकम करने के लिए वी नीड टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज. And that is why resource conservation is very important activity at various level of society. So for the first time, Club of Rome promoted resource conservation in 1968. Schumacher's book Small is Beautiful presented Gandhian philosophy once again in 1974. And what is Gandhian philosophy? तो गांधीयन फिलोसफी ये थी कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड. मतलब सबकी ज़रूरतों के लिए हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन अगर सब ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना चाहेंगे वो रिसोर्सेज को तो कुछ भी नहीं मिलेगा. देन ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट पुट फोर्थ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 1987 which means resource conservation, and this concept was published in the book entitled As Our Common Future.
Another contribution was made at the Earth Summit, which was held in Rio de Janeiro in Brazil in 1992. And we have already learned about the International Earth Summit in our previous topic. So क्या हुआ था वहाँ पे कि वहाँ पे जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट थे उन्होंने क्या किया था, एजेंडा 21 को साइन किया था एंड एक्सेप्ट किया था. एंड दैट एजेंडा 21 वाज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है लैंड रिसोर्सेज. सो एज वी ऑल नो दैट लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेज. किसी ने लैंड को बनाया नहीं है, ये नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज है एंड ये इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज भी है. अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ऑल्सो फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. Now if we talk about India, so India's land has a variety of relief features जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेटोज है, प्लेन्स है एंड आइलैंड्स भी है. इफ यू एग्जामिन द गिवन डाटा अबाउट द लैंड एरिया ऑफ इंडिया, सो 43% ऑफ लैंड जो है वो प्लेन्स के अंडर आता है, 30% ऑफ लैंड जो है वो माउंटेन्स के अंडर आता है एंड 27% लैंड एरिया जो है वो प्लेटोज के अंडर आता है. अब हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र भी क्या है, एक प्लेटो रीजन है. नाउ वी ऑल नो अबाउट द लैंड रिसोर्सेज. So next we are going to learn about how this land resources is being utilized. So let's start our last topic of the video, land utilization. Land resources is utilized for forest. 24.62% of land is under forest area. It is also used for non-agricultural things like buildings, roads, barren and wasteland. Barren land क्या है? तो barren land is a land which is very infertile. जो बंजर जमीन रहती है जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकते, ऐसी जमीन को हम क्या कहते हैं, बैरन लैंड. साइमल्टेनियसली लैंड रिसोर्सेज इज यूज्ड फॉर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग द फैलो लैंड. सो अनकल्टिवेटेड लैंड कंटेन्स परमानेंट पास्चर्स. अब परमानेंट पास्चर्स क्या है? तो परमानेंट पास्चर्स इज अ लैंड विच इज यूज्ड फॉर 5 years फॉर द सेम क्रॉप. तो परमानेंट पास्चर्स में क्या होता है कि एक लैंड जहाँ पे 5 साल तक सेम क्रॉप ग्रो किया जाता है एंड दिस क्रॉप कैन ग्रो थ्रू कल्टीवेशन और नेचुरली. और ये क्रॉप एक तो नेचुरली ग्रो होगा या तो कल्टीवेशन के थ्रू, मतलब खुद मैन्युअली ग्रो किया जाएगा. एंड लैंड इज ऑल्सो यूज्ड एज ग्रेजिंग लैंड. एंड ग्रेजिंग लैंड क्या है? ग्रेजिंग लैंड इज अ फील्ड कवर्ड विथ ग्रास एंड इट इज सुटेबल फॉर ग्रेजिंग बाय लाइव स्टॉक. जो रहती है ना खुली जमीन जहाँ पे कैटल्स को, जानवरों को चराने लेके जाते हैं, वो जमीन जो है वो है ग्रेजिंग लैंड. Also, it contains land having miscellaneous tree crops and cultivable wasteland, which left uncultivated. At the same time, land is used as fallow land. Fallow land are of two types. Current fallow land, which left uncultivated for 1 year or less than 1 agriculture year. तो फैलो लैंड जो है वो दो टाइप्स में आता है. पहला है करंट फैलो लैंड, जो कि एक से कम एग्रीकल्चर ईयर तक अनकल्टिवेट उसको रखा जाता है. And other than current fallow land, remaining land is left uncultivated for 1 to 5 agricultural years. और current fallow land के अलावा जो remaining land रहती है उसको 1 से 5 साल तक uncultivated रखा जाता है. At last, net sown area. This is agricultural land which is used for cultivation. नेट सोन एरिया ये ऐसा एग्रीकल्चरल लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. दिस लैंड इज सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर. अब ये जो जमीन है कौन सी, नेट सोन एरिया की, तो यहाँ पे एक साल में एक से ज्यादा बार क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. सो ये थे लैंड यूटिलाइजेशन किस किस टाइप में हुआ है वो देखा हमने. So in this way we have completed the topics of development and conservation of resources. We also learn about land resources and its utilization and many more. और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये सारे टॉपिक्स समझ आ गए होंगे. Now here are some questions which I have given to all of you and you have to solve it with the help of textbook. If you have any doubt, you can mail us or you can ask your teachers, parents. Till then, keep watching and keep learning.